थे वो हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिए थे, अल्कोहल्स के फॉर्मेशन, रिएक्शंस। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक देयर आर थ्री थिंग्स जो कि मैं I'll let you guys know. The very first thing is its dipole moment. ठीक है, if we are going to compare the dipole moment which is अभी तक पहले जो हमने पढ़ा है, they are alkane, alkene and alkynes, and then we have studied alkyl halides. ठीक है, तो इन सबके कंपैरिजन में मतलब सारे हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में इसका हमेशा ज्यादा रहता है. ठीक है, if I'm going to compare with halides, then where is it going to stand is what we are going to have a look at. वाटर का कितना होता है? 1.85. इट इज बिटवीन हलाइड्स के कंपैरिजन में कहाँ पे है? CH3Cl और CH3F के बीच में. इज इट लाइक दैट? ठीक है, so the dipole moment overall is, it looks something like this. एक सेकेंड, मुझे so 85 ही था और वो वहीं पे लाइक करेगा. Dipole moment orders are going to be CH3Cl will be greater than H2O, will be greater than CH3F, it will be greater than CH3Br, this will be greater than CH3OH, this will be greater than CH3I. ठीक है, this is 1.86 D, 1.85 D, 1.847 D, 1.83 D, 1.68 D and 1.64 D. Regarding polarity, it is a polar molecule. It is a polar molecule with CO as well as OH bond polarity. This makes both the bonds susceptible to different reagents. Thus, alcohols
gives reaction by cleavage of both the CO as well as OH bond cleavage. ठीक है, OH बॉन्ड ब्रेक करता है तो इट स्टार्ट्स गिविंग एसिडिक कैरेक्टर, H plus and O minus में ब्रेक करेगा, and if C and O bonds break, it starts giving what type of reaction? Basic reaction OH minus, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक्सचेंज रिएक्शंस। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो ये दे सकता है वो ऑब्वियसली रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का मैक्सिमम नहीं है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शंस भी देगा, ठीक है। तो दो रिएक्शन टाइप हमको यहां से मिलते हैं, और तीसरा हमको कहां से मिलता है इसका रिएक्शन टाइप? एज कार्बन इज नॉट इन इट्स higher oxidation states, hence it is susceptible to redox reactions, और redox के बदले oxidation is a better word, oxidation reaction, ठीक है। Further, we would try to investigate the bond energy, bond maybe bond length, or we can say yeah, bond angles of different bonds which are there in this, ठीक है। So in a very normal case like CH3 O and H, this bond angle is approximately 108.9 डिग्री, ठीक है। वाटर में ये एंगल क्या होता है? 107, यहाँ पर क्या है? 108.9, very close to tetrahedral angle. Why is this happening? वहां पर भी sp3 ही रहता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने CH3 डाल दिया, which is a bulky group. Therefore, lone pairs are being pushed. ठीक है, pushed as in they are forced to contract, और कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या हो जाते हैं? ये ऑब्वियसली थोड़े दूर चले जाएंगे। एंगल कॉन्ट्रैक्शन जब भी होता है लोन पेयर्स का, तो दे टेंड टू गेट फार्दर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को? वेरी गुड। तो वाटर के कंपैरिजन में ये ज्यादा बेटर डोनर्स होते भी हैं, ठीक है। So bond angle is going to be something like this. This bond length is approximately 96 picometer. This bond length is approximately 142 picometer. 96 and 102 picometer. Uh, 142, ठीक है। If we have
ईथर्स, ठीक है, अगर ये ईथर होता है एंड दैट टू डाइमिथाइल ईथर, कैन वी एक्सपेक्ट द एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स? हाँ, 108 से ग्रेटर होता है, इनफैक्ट ये 109 से भी ग्रेटर हो जाता है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 111.7 डिग्री, ठीक है, दिस बॉन्ड लेंथ इज 141 picometer, both the bonds are 141 picometer, 41 picometer. फर्दर एक तरफ फाई अगर लगा दिया हमने और एक तरफ हाइड्रोजन को रखा है, द बॉन्ड एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 109 डिग्री, ठीक है, एंड द बॉन्ड लेंथ इज 136 picometer. Is it okay? Carbon oxygen bond energy is, carbon oxygen single bond energy 336 kilojoule per mole, and oxygen hydrogen bond energy is approximately 464 kilojoule per mole. Thirdly, we will talk about acidity of alcohols. Acidity of alcohols, क्या, किस चीज का? 85.5 किलो जूल नहीं होता है, कैलोरी होता है, तो 85.5 ही लिखवाया था ना, देख लेते हैं क्या है हिसाब किताब। 85.5 into 4.184, थोड़ा ज्यादा हो गया, ये कम क्यों लिखा हुआ है? 3-4 कैलोरी का डिफरेंस आ गया, ठीक है, इसको 350 कर लो, make it instead of 336 make it 350 kilojoule per mole. 85.5 is reasonable value, that is what it has, ठीक है, फिर यहाँ पर I'll have to modify it. 36 कहाँ से लिया है फिर मैंने? पेंसिल है किसी के पास? Anyone has pencil? चलो ठीक, क्या हुआ? Okay. The acidity happens to be something like this. 5OH has greater acidity than H2O, which has greater acidity than ROH, any ROH except methanol, and then we have HC triple bond CH followed by ammonia, ठीक है, this is any alcohol except methanol, any alcohol except methanol, ठीक है, मिथेनॉल, रियलिटी में मिथेनॉल के साथ में कैसा ऑर्डर दिखेगा? तो मिथेनॉल के साथ में इट इज गोइंग टू बी 5OH greater than CH3OH which is greater than H2O,
greater than any other alcohols. ठीक है, any alcohol except ROH, methanol. और C triple bond CH greater than NH3. और as an acid, it is not a very bright acid or strong acid. Generally with ये inorganic bases, even alkali metal hydroxides, it actually forms like it does actually a equilibrium reaction. ठीक है, favoring towards backward. मतलब कोई भी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस ROH, दिस इज गोइंग टू बी अ बैकवर्ड फेवर्ड रिएक्शन. ठीक है, और बनना क्या है, RO माइनस एंड M प्लस प्लस H2O. ठीक है, this is going to be strong acid, this is going to be weak base, relatively weak base, and this is weak acid. वीक एसिड वीक बेस. वीक बेस क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है. ठीक है, एंड दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड कंपेयर टू दिस. CH3OH के साथ में थोड़ा सा उल्टा केस होता है, वो टुवर्ड्स फॉरवर्ड फेवर्ड होता है, रिलेटिवली फॉरवर्ड फेवर्ड होता है. ठीक है, यहाँ पर अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में सोडियम के साथ ये ज्यादा बैकवर्ड रहेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके आते हैं तो थोड़ा कम बैकवर्ड. यहाँ पर अगर 90% बैकवर्ड है तो KOH के साथ मे बी 80% बैकवर्ड रहेगा. रुबीडियम के साथ बैकवर्ड टेंडेंसी और कम हो जाएगी थोड़ी सी, सीजियम के साथ थोड़ी और कम हो जाएगी, लेकिन किसी के साथ भी इनमें से किसी के साथ भी ये फॉरवर्ड फेवर्ड नहीं बन पाता है, सबके साथ बैकवर्ड फेवर्ड ही रहता है. मेकिंग सेंस? और अल्कली वाले के साथ बैकवर्ड फेवर्ड है तो फिर बाकी सारे के साथ तो बैकवर्ड फेवर्ड रहेगा ही. बाकी सारे तो कोई कैटेगरी के ही नहीं है, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस, एंड इनके साथ अगर वो बैकवर्ड फेवर्ड है तो बाकी किसी के साथ डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं है. मेकिंग सेंस? ओके. टुवर्ड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग तो फिजिकल में लिखवा चुका हूँ मैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ओके. एक चीज और, टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, the possibility of hydrogen bonding further modifies the reactivity of alcohols. ठीक है, अलग तरीके मतलब अलग जगह पर अलग काम करके ये मॉडिफाई करेगा. मेनी टाइम्स ये हेल्प करेगा, मोस्टली ये हेल्प करेगा,
कुछ केसेस में ये हेल्प नहीं भी कर सकता है हमको। जैसे कोई सिस्टम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसके साथ जब रिएक्शन करा रहे होंगे तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज गोइंग टू क्रिएट सम प्रॉब्लम, इट विल अनड्यूली डिप्रेस द ये रिएक्शन रेट्स, रिएक्शंस को स्लोअर बनाएगा। ठीक है, क्यों स्लोअर बनाएगा? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इसकी वजह से बढ़ जाएगा। पेरेंट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में ये एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करने की वजह से द एक्टिवेशन एनर्जी विल गेट इम्प्रूव्ड। मेनी अ टाइम्स ये इजी भी कर देता है बॉन्डिंग। अगर कोई चीज सपोर्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, या कोई ऐसा सॉल्वेंट है जिसके जिसके अंदर टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करने की, तो वो इस हाइड्रोजन के साथ, पोलर हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्ट करके कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा, और इन खुद के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की टेंडेंसी जो होगी दैट विल गेट मॉडिफाइड और इम्प्रूव। और मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर पोलर प्रोटिक या पोलर एप्रोटिक में भी कर रहे हैं, तो the possibility of hydrogen bonding actually enhances our or modifies in positive ways the reactivity of alcohols. But non-polar solvents में अगर हम इनको interact कराने की कोशिश कर रहे हैं तो that hampers the reactivity rate. Making sense? आखिरी point इसके regarding there is something called fusel oil. ठीक है, it is a mixture of primary alcohols with isopentyl alcohol which is CH3 CH2 CH sorry CH3 CH2 CH2OH as major component and normal profile alcohol isobutyl alcohol active amyl alcohol. This is going to look like CH3 CH2 CH3 and CH2OH is an isomer of isopentyl. As other important constituents. ठीक है, सो फसल ऑयल के साथ हमको ये एक चीज ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, एंड साथ में एक्टिव अमाइल। फाइन, नोटेड।
The reactions here has been classified as three types of reactions. The first one being cleavage of OH bonds. ठीक है. The second one, actually the third one, the second one will be the which I'll be discussing will be uh, oxidation reduction. And the third type will be non-redox reactions due to cleavage of OH bond. ठीक है. So OH बोल रहा हूँ यार, CO bonds. ठीक है, due to cleavage of CO bonds. पहला वाला जो होगा due to cleavage of OH bonds, that is acidic reactions of ROH. दूसरा जो होगा वो redox reactions रहेगा, oxidation of ROH. And third reaction type will be cleavage of CO bonds in non-redox processes. ठीक है, that is nucleophilic substitution probably via elimination addition. ठीक है, making sense? आप लोग को आवाज आ रही है क्लियरली ना? केविन, तनुषा, तमन्ना, डिस्टर्बेंसेस नहीं है ना? एक सेकेंड. Type A reactions OH bond cleavage. Number one is reaction with active metals. ठीक है, ROH, ROH can react with almost all the reactive metals, sodium, potassium, magnesium, in fact up to zinc, etc. to produce RO minus and M plus half H2O, sorry half H2 hydrogen gas. ठीक है, मेटल जो निकलता है वो इलेक्ट्रॉन देता है और यहाँ पर हमको हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में मिलता है. वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और H2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, निकलने वाले एक H+ के साथ इधर से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो न्यूट्रल और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करके वो माइनस होकर के दोनों ज्वाइन कर जाते हैं, H- H+ H2 बना लेते हैं. अभी पॉइंट ये है कि अगर हम इनको H2 ना बनने दें, इन C2 जब ये प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी समय पे इलेक्ट्रॉन जब निकल रहा है और H+ जब प्रोड्यूस हो रहा है, उस टाइम पे अगर हम कुछ ऐसे सबस्ट्रेट डाल के रखें जिनके साथ ये रिएक्ट कर सके, ठीक है, तो फिर क्या होगा, दे कैन एक्चुअली रिड्यूस दोज एंटिटीज. ठीक है, अब रिड्यूस दोज एंटिटीज में भी एक फंडा ये होता है कि दैट एंटिटी, द सबस्ट्रेट व्हिच वी आर एडिंग एंड वी एक्सपेक्ट देम टू गेट रिड्यूस्ड must have some polarity in them. They must not be non-polar like alkenes. ठीक है, अल्कीन्स का रिडक्शन इससे नहीं हो पाएगा, अल्काइंस का रिडक्शन कैन बी डन. ठीक है, इसीलिए अल्काइंस के रिएक्शन के अंदर में या एक क्वेश्चन के अंदर वो अल्काइन के रिएक्शन में मैंने डाल रखा था. बात समझ में आ रही है हम लोगों को, सारे लोगों को?
केविन, तनुषा, तमन्ना, शुभम, आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है। अल्कीन को अगर हम रिएक्ट कराने की कोशिश करेंगे, दैट बीइंग अ नॉन पोलर एंटिटी इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट, क्योंकि ये रिएक्शन जो होगा इसके लिए हमको पोलर मीडियम चाहिए, और मीडियम क्या, अल्कोहल खुद भी पोलर है, तो पोलर है और पोलर सॉल्वेंट को वो रिस्पॉन्ड अगर नहीं करते हैं अल्कीन्स या पोलर सॉल्वेंट के साथ, उनको प्रॉब्लम अगर होगा, और वो होगा ही उनको, ठीक है, क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो इनका इफिशिएंट रिएक्शन नहीं हो पाएगा, या फिर उनका रिडक्शन नहीं हो पाता है। ऑन कॉन्ट्ररी अल्काइन के अंदर में इससे रिएक्शन हो जाता है और उसका रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। सो अल्काइंस आर potentially susceptible to ROH plus active metal reduction, ठीक है। apart from alkynes, all the polar molecules which are going to be there, ठीक है, all the polar molecules मतलब aldehydes, ketones, carboxylic acids, ये अमाइंस तो उतना ज्यादा नहीं, बट हाँ अमाइंस भी, they all are going to be susceptible to ROH plus active metal reduction system, ठीक है, ROH plus active metal reduction system. Am I making sense? क्या क्या? हाँ, किसके साथ? नहीं, अल्काइन मेटल के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ ROH रिएक्ट कर रहा है, जो H प्लस एंड H माइनस जनरेट करेगा। मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े तो एक H प्लस जो होगा वो H माइनस बन जाएगा, और वो आपस में रिएक्ट ना करके, अगर कोई हमने प्रॉपर सबस्ट्रेट डाल रखा है पहले से पोलैरिटी वाला, तो वो उनके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विथ ईच अदर के साथ कंबाइन किया तब तो फिर H2 ही बना के रह जाएगा, रिडक्शन किसी का नहीं करेगा। रिडक्शन करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा, तो सबस्ट्रेट हमको पहले डाल के रखना पड़ेगा। इन सीटू प्रोडक्ट, सॉरी इन सीटू ये करता है, इन सीटू रिडक्शन करता है, वी कैन नॉट कीप इट एंड यूज इट लेटर ऑन फॉर रिडक्शन, ठीक है। काफी चीजें ऐसे करती हैं, बट ये इन सीटू करेगा। इन सीटू का मतलब ही ये होता है कि जहां पे प्रोड्यूस हो वहीं पे रिड्यूस करेगा, वहीं पे काम करेगा, ठीक है। अगर उसको बाद में बाहर निकाल के काम कराने की कोशिश करेंगे तो इट विल form some, I mean it will get transformed into something else, or and may not be that effective, ठीक है। इफेक्टिव बनाने के लिए फिर से उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा हमको, if we want we can do that also, but ठीक है, एक्सपेंसिव प्रोसेस होएगा, ऑब्वियसली एनर्जी एक्सपेंसिव। ओके, फर्दर ओके, अल्कालीज के साथ मैंने बता दिया है कि कैसा रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इट इज वेरी मच लेफ्ट फेवर्ड, NaOH के साथ लेफ्ट फेवर्ड, एक्चुअली सबके साथ लेफ्ट फेवर्ड ही रहता है। द ओनली थिंग इज नीचे वाले जो होते हैं उनके साथ थोड़ा रिलेटिवली कम लेफ्ट फेवर्ड होता है, ठीक है। दैट इज फॉरवर्ड फेवर्डनेस इसकी बढ़ जाती है नीचे वाले अल्काइल हाइड्रोक्साइड, अल्काइल बोल रहा हूँ, अल्कलीज के साथ, नीचे वाले अल्कलीज के साथ इसका फॉरवर्ड फेवरिज्म जो है वो थोड़ा इंप्रूव कर जाएगा, बट इट नेवर बिकम्स अ फॉरवर्ड फेवर्ड रिएक्शन विथ एनी ऑफ द अल्कलीज। लास्ट मतलब इसके रिगार्डिंग लास्ट सेंटेंस, ठीक है। हाँ, ये जरूर है, दे कैन रिएक्ट विथ
ये अल्कलीज को छोड़ दें अगर, जैसे ROH कैन रिएक्ट विद very easily with strong bases like maybe RMGX, ठीक है, या फिर NaNH2। देखो ट्रू कॉलर है एक्टिव। हेलो, हाँ बोलिए। कहाँ से कॉल किया था आपने? अच्छा 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 अच्छा, आई रिमेम्बर। हाँ, नहीं बट अभी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, थैंक यू। Yeah, ROH can react with RMGX or NaNH2 to form like इस केस में RH फॉर्म हो जाता है प्लस MgOR and X, and इस केस में it forms ammonia plus RO minus Na plus, ठीक है। सो ये ज्यादा रिएक्टिव बेसिस के साथ ROH कैन रिएक्ट विद RMGX and NaNH2 to produce this, and ये लगभग फॉरवर्ड फेवर्ड, कंप्लीटली फॉरवर्ड रिएक्शंस होते हैं। अल्कलीज के साथ इट इज बैकवर्ड फेवर्ड ऑलवेज विथ इंक्रीजिंग फॉरवर्ड फेवर्ड फेवरिटिज्म या फेवरिज्म। चलेगा, बात समझ में आ गई होगी हम लोगों के, व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस। ये सेम प्रोसेस को यूज करके यहाँ पर जो हमने ये प्रिपेयर किया है RO minus M plus, this thing is utilized and this is known as metal alkoxide, metal alkoxide, ठीक है। metal alkoxide is used with RX, that is metal halides, to produce ethers, ठीक है। metal alkoxides are used or reacted with metal halides, sorry, halides, alkyl halides to form ether, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ वहां पे एक्चुअली हमको सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है कि RX मस्ट बी 1 डिग्री एज फार एज पॉसिबल। एज फार एज पॉसिबल क्या, अगर नहीं है 1 डिग्री, अगर कुछ ऐसा कंडीशन बन रहा है कि दोनों ही 3 डिग्री है, मतलब दोनों पार्ट 3 डिग्री दिख रहे हैं, तो फिर तो वो अल्कोहल नहीं बन सकता है, सॉरी वो ईथर नहीं बन सकता है, वहां पर एलिमिनेशन होने लगेगा। अदरवाइज RX को हम 1 डिग्री रख करके एंड RO माइनस M प्लस में R को 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रख करके वी कैन डू द और परफॉर्म द रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है हमारे लिए बेस्ट, वो ये हो सकता है कि दोनों तरफ अल्कोहल 3 डिग्री दे दिया जाए, या फिर ऐसा ईथर दे दिया जाए जिसमें O के दोनों तरफ फ्लैंक्ड ग्रुप जो है वो 3 डिग्री है, ठीक है। और 3 ऑप्शन दे दिए जाए, एक 3 डिग्री वाला, एक 1 डिग्री वाला, एक 2 डिग्री वाला, एक 1 डिग्री वाला, एंड उसमें ये पूछ ले कि कौन सा ये विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनेगा,
राइट? दिस कैन बी अ वेरी, आई मीन वेरी इजी तो नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ ठीक है, एक डिसेंट सा क्वेश्चन हो सकता है ये। बात समझ में आ रही है हम लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली विलियमसन सिंथेसिस में है क्या, वहां पर मेटल अल्कोक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ, मेटल alkoxide will react with alkyl halide generally SN2, जनरली क्या SN2 ही होगा, नहीं होगा तो एलिमिनेशन होने लगेगा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, must be 1 डिग्री to produce ether and HX, ठीक है। और this process is known as, क्या बोलते हैं इसको, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस, ठीक है। अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बकर किया, उसके ऊपर एक छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन, which of the following cannot be prepared by, नीट वाले लोग इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पीसफुली पूछते रहते हैं, ये एप्लीकेटिव क्वेश्चन होएगा भाई, विलियमसन, क्योंकि इस बार ये पूछ चुके हैं, कपलिंग रिएक्शन पे पूछ चुके हैं वो, इस पेपर में कपलिंग रिएक्शन पे पूछ लिया उन्होंने, तो नेक्स्ट ईयर विलियमसन सिंथेसिस अगर वो पूछ लिया है तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा उनके लिए। CH2O CH3, सुन रहा हूँ। ओए नेल बाइटर,
हाँ सर, कुछ बोलेंगे? बोलिए। तनुषा, तमन्ना। हेलो। फर्स्ट वाला बनेगा, बाकी